A forensic team has arrived at the incident site in Hathras in Uttar Pradesh, where a disturbing development has taken place. There was a satsang that was on, and in that, hundreds of people, specifically poor people, had gathered, and 116 people have officially confirmed to have lost their life. That's the tragedy here. We are told in the latest development, 3 commandments of the PAC have reached Hathras. Companies from Agra, Etah and Aligarh have reached Hathras, but absolutely shocking. And the bigger question is, what happened to the management? Why was it not up to the mark? And if this did not have prior permissions to be holding this satsang, why was it allowed? How can hundreds of people gather without prior information to the administration? 2 companies of NDRF, SDRF are on the spot. Remember that if 116 people officially have been confirmed to be dead, what would have possibly unfolded at that religious congregation? We are told this was some spiritual leader, Narayan Sakar Hari, popularly known as Bhole Baba. Seems to be a local religious popular leader, reaching out to the devotees because clearly hundreds of people had gathered. Basically what happened, the information that I'm picking up is, when this Bhole Baba was leaving, that is when people wanted to rush, it's usually been a matter of faith that they wanted to rush and gather some dust from the feet of the god man, Baba's Charandul as it is called. And that is when it led to a massive commotion and a stampede. People started to fall, and sadly, as it always happens, who died the most? Women and children. आप जहाँ तक गए तो उससे अंदर भी है? हाँ, हमको पूरा कैंपस छान के आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो मुलाकात नहीं हो पाई सर? है नहीं, तो मुलाकात अनुयायी तो बता रहे हैं महाराज जी अंदर हैं। आपसे कहे होंगे तो पता नहीं। 3 बजे की बात है। अनुयायियों ने बताया है कि महाराज जी अंदर हैं। हमको नहीं मिले। अनुयायी ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगभग 2:30 बजे करीबन महाराज जी यहीं आगे, सबसे यहीं पर। नहीं, यहाँ नहीं है महाराज जी। आपसे मुलाकात नहीं होगी? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं, यहाँ है भी नहीं। यहाँ है भी नहीं। Himanshu Mishra and Santosh Sharma are joining me for the latest on this. I want to quickly translate what the cop has said. The cop was being asked about this godman, Bhole Baba, to which he had said he is not there, he's not in the premises, which clearly means he has run away, he's absconding. What a shame that he hasn't even put out a statement, knowing fairly well 116 people have died because they were at his congregation. Santosh Sharma is right outside Baba's ashram in Mainpuri. Himanshu Mishra is in Hathras. Santosh, I'll first come to you. हमें बताइए क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग थे? अगर 116 लोगों की डेथ हो गई है तो वहां गैदर्ड कितने थे? देखिए, ये हादसा हाथरस के सिकंदरा राव में हुआ और वहां पे 1 से 1.25 लाख के लगभग लोग वहां पर इकट्ठा थे। 12 से 12.5 हजार तो इनके सेवादार थे वहां पर, जो लोग इनके कर्मचारी काम करने वाले थे, वो वहां पर 12 से 12.5 हजार लोग थे। 1 लाख से 1.25 लाख लोग मौजूद थे। और अगर हम आज हम बात करें, मैं इस समय पर मैनपुरी को उस बाबा के गॉडमैन के आश्रम के सामने मौजूद हूँ। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये मैनपुरी में ये आश्रम है और ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ आश्रम है। और देखिए कि किस तरीके से गांव में जैसे फार्म हाउस होता है, कुटी, बिग बंगलो, और तो वो उस तरीके से चारों तरफ सुरक्षा के बिल्कुल सिक्योरिटी प्लान है इनके पास। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कल जैसे रात में जो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे कि नहीं बाबा नहीं है, अगर बाबा नहीं है तो पुलिस यहाँ पर क्यों? चारों तरफ मौजूद है पुलिस, सारे गेट्स पर मौजूद है, पीछे भी मौजूद है। जो नेशनल हाईवे की से जो रास्ता आता है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और अंदर से गेट बंद है। यानी कि बाबा को कल रात में, कल कार्यक्रम के बाद जब 1:30 बजे हाथरस में कार्यक्रम खत्म हुआ तो 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करके, 1.5 घंटे की दूरी पर है यहाँ से हाथरस मैनपुरी से, तो वहां से आने के बाद सीधे बाबा को अंदर जाते हुए देखा, लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। और दूसरी बात कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बहुत अहम है। एफआईआर दर्ज हुई है उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ जिन्होंने ये सत्संग को आयोजित किया था, सत्संग को ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर हुई है बदइंतजामी के लिए। ये बदइंतजामी क्यों हुई? तो इन लोगों ने परमिशन ली थी बाकायदा, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात कि जो परमिशन ली गई थी उसमें अमूमन जब हम जनरली जब पूछते, अधिकारी पूछ लेते हैं कि आपके घर में कितने लोग आएंगे, तो उसमें एक अप्रॉक्स नंबर्स बताना होता है। तो इसमें इन लोगों ने अनगिनत नंबर, मतलब नो नंबर्स, अनकाउंटेबल
तो ये एक चीज थी, वो उन लोगों ने अपनी परमिशन ले रखी थी, 3 घंटे की परमिशन। अब वहां से 1 से सवा लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वहां स्टैम्पेड हुआ, बाबा निकलने लगे तो बाबा के पैर छूने के लिए लोग भागे, भगदड़ मची और उसी में लोग दब गए, एक के ऊपर एक गिरते चले गए। फिर सफोकेशन, मौसम भी ऐसा था कि लोग दम घुटने से मौत हो गई। यही वजह थी कि मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं, करीब 50 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ये तो वो संख्या है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। ऐसे तमाम लोग होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स इसको सुनने के बाद अपने पास घर ले गए होंगे, जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए होंगे, अपने लेवल पे इलाज करा रहे होंगे, तो वो तो अनअकाउंटेड है। I cannot help but think at this point, specifically children I saw have seriously been injured. Looks like some have died, and God forbid some are missing as well. Please stay on with me, Santosh. Very important points that Santosh Sharma has put out, and he showed us that huge bungalow where this God man is. My point is, and my question to the authorities, why haven't you taken over the ashram? If he's there, why haven't you ensured you have gone inside that ashram and got that God man out? Himanshu Mishra joins me. Himanshu, ऐसे सिचुएशन में जब कोई इवेंट होता है इस तरह का, स्पेशली डिवोशनल होता है, लोग तो एक्सपेक्टेड होते ही है, एक रिलीजियस कंट्री है, बिलीफ होता है गॉडमैन पे और बाबाओं पे। तो जब 1 लाख लोग, जैसे अगर संतोष बता रहे हैं, ऐसी हजारों की तादाद में लोग आ गई, तो अरेंजमेंट होनी चाहिए थी, पब्लिक इवेंट था, कैसे इतने सारे लोग आ गए और उस तरह का स्टैम्पीड हो गया? कहां थी अथॉरिटीज? ये तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। और कौन है ये बाबा, भोले बाबा? देखिए, ये पूरा सवाल है, इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन 2 पॉइंट पे किया जा रहा है। एक पॉइंट तो कैसे हुआ ये समझा जा रहा है। देखिए, ठीक यही जगह है जहां पर लोग नीचे गिरते चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और पूरे खेतों में आप देखिए सामने, जहां पर अब यूपी पुलिस ने डू नॉट क्रॉस का चारों तरफ लेबल लगा दिया है और अंदर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम एविडेंस कलेक्ट करने में जुटे हुए हैं। दरअसल वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, और उसके लिए यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। वहीं दूसरी तरफ चूक कहां हुई, आखिर इतने लोग जुटे तो उनको लेकर के तैयारी किस तरीके की गई थी? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या आयोजकों से बात की थी? आयोजकों ने क्या संख्या को लेकर के गुमराह किया, सही संख्या नहीं बताई, या फिर कम संख्या बता करके उन्होंने परमिशन ले ली? तो ऐसी परिस्थिति में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका क्या रोल था, वो क्या कर रही थी? क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे 1 लाख से ज्यादा, वो लोग सभी सड़कों से ही तो आए हैं। तो आखिर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पुलिस कलेक्ट कर पाई कि यहाँ पर ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं? और ऊपर से जब भी इस बाबा का कोई भी कार्यक्रम होता, अगर पिछला कार्यक्रम, जैसे हम लोग जो आई विटनेसेस से बात की, जो लोग यहाँ आए थे, उनका कहना है कि जब भी इसका कोई प्रोग्राम होता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अब मैं आपको वो टेंट दिखाता हूं जहां पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। yes. अब आप ये सामने का पूजा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उस पूरे इलाके में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दूर तक, जैसे लाखों लोगों के लिए अगर होता है कि कई भाई 1 लाख लोग आएंगे तो उसको लेकर के बड़े पैमाने पर दूर तक टेंट लगाया जाता है। ये हाईवे जो है पूजा, ये बेहद बिजी हाईवे। आप देखिए, सुबह इतना ट्रैफिक है कि इसको क्रॉस करने में हमें टाइम लग रहा है, तो दिन के वक्त में 1:30 बजे पे Be careful Himanshu, be careful when you cross this busy highway and you go across on the other side, as he shows us the entry point. Remember, the numbers we are talking about, let's say, is a World Cup cricket match. And the sort of arrangements that you would think are made there. Here I see a small entry. Himanshu, ये तो बहुत ही छोटा एंट्री गेट है जो आप हमें दिखा रहे हैं, और हमें अब बताइए डिटेल्स, थोड़ा दिखाइए हमको किस तरह का वहां पे अरेंजमेंट है। अब ये देखिए, जहां पर मैं लेके आया, ये वो पूरा प्रोग्राम की जगह थी जहां पर प्रोग्राम हुआ था, और सामने वहां पर तकरीबन बहुत ज्यादा दूरी नहीं है जहां पर स्टेज लगाया गया था। अब ये जो बल्लियां लगी, उनको देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 1 लाख नहीं, बल्कि अगर 5000 लोग भी अगर यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा, भर जाएगा। अब हुआ क्या कि जब इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो दूर तक ट्रैफिक जैम भी लग जाता है, और यहाँ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग थे। जो आई विटनेसेस थे, जिनका आसपास घर है, उन लोगों का ये कहना है, जब हमने बात की अंदर जाकर के, कि जब लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो 7 से 8 हजार के आसपास तो 2 व्हीलर्स मेन रोड पर यहाँ पर चारों तरफ पार्क थे, 7 से 8 हजार।
अब जब बाबा की गाड़ी अंदर, जब बाबा प्रवचन खत्म हुआ पूजा, तो अंदर वहां पंडाल आप जहां देख रही हैं, तो दूसरी तरफ से एक रास्ता बनाया गया था और गाड़ी उधर से पूरी टर्न लेते हुए मेन रोड पर पहुंचती है। और मेन रोड पर जब गाड़ी पहुंचती है तो जहां पर हम सामने, जहां पर आपको ये पुलिस की व्हीकल दिखेगी, गाड़ी दिखेगी सामने, यहां पर आकर के एक आई विटनेस का कहना है कि कुछ क्षण के लिए रुकती है गाड़ी और उसके बाद वो चली जाती है। और गाड़ियों का लंबा काफिला था। ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पर अंदर से, चूंकि प्रवचन तो खत्म हो गया था, बाबा निकल गया था, तो जो लोग बाहर की तरफ आ रहे थे वो आगे बाबा के और करीब जाने के लिए चक्कर में उनकी तरफ भागते हैं। उनमें महिलाएं, बच्चे, सभी लोग होते हैं। अब वो लोग जो आगे पहुंच जाते हैं, वो आगे पीछे से आ रही भीड़ से खुद को बचा नहीं पाते। और चूंकि इतने लोग थे कि पीछे वाले को अंदाजा ही नहीं कि आगे हो क्या रहा है। और आगे वाला जो नीचे गिरा, उसके ऊपर लोग गिरते चले गए। As you described these disturbing details, who was there? Poor people, hopeful of a reprieve, perhaps some positivity in their life, and that's why they thought this Bole Baba satsang is worth going to. And then who died? Mainly poor women and children, from the visuals that have emerged. Absolutely horrific incident that's taken place. Santosh and Himanshu, I'll thank you for now, but I'll come back to you in just a short while, because Hathras Stampede is our big story this morning. This is Sikandar Rao village in Hathras district in Uttar Pradesh, where according to eyewitnesses, according to our colleagues on the ground, about 1 lakh people approximately had gathered to attend a religious congregation of one Bhole Baba. When he was leaving to try and catch his glimpse, a stampede broke out. Most victims, women, children, dead or missing. The fact, no proper exit arrangements were made. A small exit from where they could leave. Uneven roads further escalated the chaos.